ایپیسوڈ 14۔ میں پہلے ہی چھپنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ ایک کونے میں چھوٹا سا دروازہ نظر آ رہا تھا جو کھولنے پر باتھ روم ثابت ہوا۔ میں ماریا سمیت اس میں گھس گیا۔ یہ اس الماری کے بالکل پاس تھا جس کے عقب میں خفیہ تجوری تھی۔ ہمارے باتھ روم میں جاتے 2 افراد اندر گھس آئے تھے۔ آواز سے لگ رہا تھا کہ ایک تو باس نوجوان تھا، دوسرا کوئی اور تھا۔ انہوں نے الماری سرکائی اور سیف کھولنے لگے۔ اس کام میں انہیں بمشکل 1 منٹ لگا تھا۔ انہیں روکو، ماریا نے کہنا چاہا تو میں نے اس کا منہ دبا دیا، لیکن مجھے تاخیر ہو گئی تھی۔ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ دوسرے شخص نے کہا۔ ان میں سے کوئی بولا ہوگا۔ نوجوان کا اشارہ کمرے سے باہر موجود افراد کی طرف تھا۔ نہیں استاد، آواز قریب سے آئی ہے۔ چاپ باتھ روم کی طرف سے آئی۔ میں ماریا کو لے کر دروازے کے عقب میں دیوار سے چپک گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ اندر تاریکی تھی، کسی لمحے بھی روشنی ہو سکتی تھی اور اس کے بعد ہمیں پکڑے جانے میں دیر نہ لگتی، مگر نہ جانے کیوں اس نے روشنی نہ کی اور نہ ہی اندر جھانکا، بلکہ دروازہ بند کر دیا۔ اسی وقت استاد کی آواز آئی، سیف کھل گیا ہے، اس میں تو خاصا مال ہے۔ دوسرے شخص نے کہا، سب سمیٹ لو، شاد کو بلا لو، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ نوجوان نے اضطرابی لہجے میں کہا، ابھی تو مزے کرنے ہیں استاد۔ ہاں، لیکن صبح سے پہلے ہمیں نکلنا ہے، اسلام آباد پولیس کا معلوم ہے نا، پکڑے گئے تو مارے جائیں گے۔ ماریا کی انگلیاں میرے بازو میں پیوست ہونے لگی تھیں۔ وہ سخت طیش میں تھی۔ اس نے باہر جانے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے روک لیا۔ وہ منہ سے آواز نہیں نکال سکتی تھی، بے بسی سے ہانپ کر رہ گئی۔ کچھ دیر کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہیں۔ وہ لوگ سیف خالی کر رہے تھے۔ دوسری طرف ڈرائنگ روم سے ماریا کی بڑی بہن کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں اور لوگ بھی شور کرنے لگے۔ پھر ان کا شور تھم گیا۔ شاید کسی طریقے سے ان کے منہ بند کر دیے گئے تھے۔ خود میرے لیے صبر کرنا دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ ماریا کا تو برا حال تھا۔ اس کا اڑتا بدن بتا رہا تھا کہ وہ باہر نکل کر ان بدماشوں پر ٹوٹ پڑنا چاہتی تھی، لیکن میں ایسے کسی اقدام کے حق میں تھا ہی نہیں جو ہمیں بھی گرفتار کروا دے۔ کچھ دیر بعد اسٹڈی میں خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ لوگ چلے گئے تھے۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ اسٹڈی کا دروازہ بھی بند تھا۔ ماریا کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ وہ باہر نکلتے ہی تیزی سے اسٹڈی کی میز کی طرف لپکی۔ اس نے ایک دراز کھولنے کی کوشش کی۔ اس میں پاپا کا پستول ہے۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا۔ یہ تمہیں اب یاد آ رہا ہے؟ لڑکی اب رونے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا یہی موقع ہے انہیں قابو کرنے کا۔ دراز لاک تھی اور چابی نہ جانے کہاں تھی۔ میں نے دوسری درازیں کھولی۔ اتفاق سے ایک دراز میں تار مل گیا۔ یہ پتری نما تار تھا جو بعض اوقات کتاب میں صفحہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی مدد سے دراز کا لاک کھولنے کی کوشش کی۔ مزید خوش قسمتی کہ بالکل اناڑی ہونے کے باوجود لاک کھل گیا۔ میں نے تیزی سے دراز میں اوپر ہی رکھا پستول نکالا۔ یہ کولٹ تھا، بالکل نیا اور لوڈڈ۔ میں نے سیفٹی کیچ ہٹاتے ہوئے ماریا کو اپنا منصوبہ سمجھایا۔ زیادہ جوش میں آ کے مت نکل جانا، انہیں اندر لانے کی کوشش کرنا۔ میں دروازے کے عقب میں کھڑا ہو گیا اور ماریا نے اسٹڈی کا دروازہ کھولا اور زور سے چلائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ کتیا یہی ہے، پکڑو اسے۔ ماریا نے یوں دروازہ بند کر دیا جیسے جان بچانے کے لیے واپس بھاگی ہوں، لیکن دروازہ بند کرتے اس نے کمرے کی روشنی بجھا دی تھی اور بیس بال کا بلہ تھام کر تیار ہو گئی تھی۔ حسب توقع آنے والا اندھے بیل کی طرح اندر گھسا اور پھر یقیناً دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے تاریک ہو گئی ہوگی۔ ماریا نے پوری قوت سے اس کے سر پہ ڈنڈا دے مارا۔ وہ آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ وہ کم سے کم بے ہوش ہوا تھا اور اس کے دنیا سے گزر جانے کے روشن امکانات بھی تھے۔ میں نے تیزی سے اس کی تلاشی لی۔ اس دوران ماریا یوں چیختی چلاتی رہی جیسے اس سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر میز پر ڈالا اور ایک دل خراش چیخ ماری۔ نسوانی چیخوں کی تو انہیں پرواہ نہیں تھی، لیکن مردانہ چیخ نے انہیں چونکا دیا ہوگا۔ میں ایک بار پھر دروازے کے پیچھے مستعد کھڑا ہو گیا۔ ماریا میز کے پاس فرش پر گٹھری بن کر لیٹ گئی تھی۔ کولٹ اس کے پاس تھا۔ میں نے سر پر ڈنڈا کھانے والے کا ریوالور لے لیا تھا۔ ارے کیا ہوا تجھے؟ باہر سے آواز آئی، اور جب اندر سے خاطر خواہ جواب نہیں آیا تو بیک وقت 2 افراد اندر گھس آئے تھے۔ میں نے ایک کو فوراً ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ دوسرا خطرہ بھانپ کر ایک طرف ہوا اور اس نے اپنا ماؤزر سیدھا کیا ہی تھا کہ ماریا اس پر چیل کی طرح جھپٹی۔ اس نے ایک شاندار کک مار کر اس کے ہاتھ سے ماؤزر طوطے کی طرح اڑا دیا۔ اس نے بلبلا کر گالی دی اور گالی ادھوری چھوڑ کر ایک پرسوز آواز نکالی۔ ماریا کی دوسری گھومتی لات اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ وہ کورنش بجا لانے کے انداز میں جھکا ہی تھا کہ میں نے اس کا سر بجایا اور وہ اپنے پیروں پر ڈھیر ہو گیا۔ حملہ ور ڈاکوؤں کی نصف نفری بیکار ہو چکی تھی، لیکن ساتھ ہی باقی ڈاکوؤں کو خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے تیزی سے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اسی لمحے باہر کوئی دروازے سے ٹکرایا تھا۔ مکرم، جمی، کیا ہوا؟ وہ چلایا، ایک طرف ہو جاؤ۔ میں نے ماریا سے کہا۔
जैसे ही वो हटी, बाहर से किसी ने ब्रस्ट मारा और दरवाजे से गोलियां गुजरकर सामने मेज और अकब में अलमारी से लगी थी। हम किनारों पर थे और बाकी जमीन पर ढेर थे, लिहाजा किसी को गोली ना लगी। अलबत्ता मैंने एक चीख मारने में कोई हर्ष न समझा। मारिया ने भी चीख मारी, यूसुफ क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? उल्लू की पट्टी, मैंने दिल में कहा और हलक से ऐसी आवाज निकाली जैसे आखिरी हिचकी ली हो। दूसरे ब्रस्ट ने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया था और कोई आंधी की तरह अंदर दाखिल हुआ। मारिया समझी कि मुझे सचमुच गोली लग गई है। उसने एक जुनूनी अंदाज में आने वाले को गोली मार दी। बाद में ये उस्ताद साबित हुआ था। उस्ताद की चीख ने बाकी दो के औसान खता कर दिए और उन्होंने रकम वाला बैग उठाकर भागने में आफियत जानी। उनके जाते ही मैं स्टडी से बाहर निकला। मैं मोहतात था, ये उनकी कोई चाल भी हो सकती थी। ड्राइंग रूम का बाहर जाने वाला दरवाजा खुला हुआ था और बाकी डाकू गायब थे। मैंने बाहर जाने के बजाय सबसे पहले ड्राइंग रूम में तमाम दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। फिर मैंने सबसे पहले बेगम निजामी को खोला ताकि वो बेहोश पड़ी बेटी की सतरपोशी कर सके। उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए थे, लेकिन खुदा का शुक्र था कि वो अपने मकरू अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके थे। फिर मैंने हसन अली को खोला और बोला, असलहे पर कब्जा कर ले, ये इन बाप बेटे के हाथ में ना आने पाए। उस फैसले की वजह महमूद निजामी और शामी का तैश था, जो उनके चेहरों से जाहिर था। अगर उनके हाथ डाकुओं का कोई हथियार लग जाता तो वो उनको मार भी सकते थे। महापारा को भी बांध दिया गया था। मैंने उन्हें खोला। इस दौरान में हसन अली स्टडी में जा चुका था। उसके अंदर जाते ही मारिया भागती हुई बाहर आई और बेताबी से मेरा मुआयना किया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैंने खफीफ होकर कहा। सामने उसका बाप और भाई खड़े थे। अपनी बहन को देखो। आजाद होते ही महमूद निजामी फोन की तरफ झपटा था। जैसे उसने रिसीवर उठाया, उसका मुंह लटक गया। लाइन डेड है। डैडी, ऊपर के हिस्से में फोन है जो हमने बराबर वालों से लिया था। उसका तार भी दरख्तों से आ रहा है। शायद उन डाकुओं को नजर न आया हो। मैं जाकर देखती हूँ। आओ यूसुफ, मारिया बोली और बेतकल्लुफी से मेरा हाथ पकड़कर खींचती हुई ले जाने लगी। जब महमूद निजामी ने उसके बजाय अपनी बेहोश बेटी पर तवज्जो दी तो मैंने सुकून का सांस लिया। मारिया मुझे लेकर ऊपरी मंजिल में आई। उसने एक कमरा खोला। चाबी उसने कार्नस के ऊपर से उतारी थी। अंदर घुसते उसने दरवाजा बंद किया और मुझसे लिपट गई। मुझे ऐसे ही किसी इक़दाम की तवक्को थी। उसकी गर्मजोशी ने मुझे हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था, मगर इससे पहले कि सूरत हाल काबू से बाहर होती, मैंने उसे पीछे धकेल दिया। फोन तो करो। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। रेशमी नाइटी से झलकती उसकी ये जान खेसी अच्छी लग रही थी। डाकू तो चले गए। उफ, तुम तो हीरो हो, अकेले ही सबको मार गिराया। ये कुर्बत, ये प्यार और एहसास बिल्कुल मुख्तलिफ था जो मुझे काजल के कुर्ब में महसूस होता था। ये एक भड़कता हुआ शोला था जो मेरे तन बदन में आग लगा रहा था। काजल की कुर्बत में आग नहीं बल्कि सुकून था। प्लीज मारिया, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने उसे एक तरफ किया। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, दीवानी हूँ तुम्हारी। क्या वो भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करती है? जहां तक दिल का ताल्लुक है, दोस्त जैसा प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी मुराद उस कुर्बत से है जिसका इजहार तुम अभी कर रही थी, तो मुझे काजल की ऐसी कुर्बत नहीं मिली। वो सिर्फ 12 साल की है। हो, यानी बच्ची है। वो तुम्हें क्या दे सकती है? जो कुछ वो मुझे देती है उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने मुस्कुराकर कहा और रिसीवर उठाकर चेक किया। टोन आ रही थी। नंबर बताओ पुलिस का, मैंने कहा और फिर उसका बताया हुआ नंबर मिलाकर पुलिस को डकैती की इत्तला दी। पता बाऊजी, दूसरी तरफ से किसी आदम बेजार से हवलदार ने कहा। और जब मैंने उसे महमूद निजामी की कोठी का पता बताया तो वो उछल पड़ा। उस इलाके के तमाम रिहायशी तोप थे और यहाँ डकैती का मतलब था कि पुलिस की शामत। हमने 4 डाकू पकड़ ली हैं, जिनमें से एक शायद फौत हो गया है। मोबाइल अभी आती है जी, हवलदार ने बौखला कर कहा। मैंने रिसीवर रखा और मारिया की तरफ देखा। उसका मुंह बना हुआ था। क्या वो बहुत खूबसूरत है? मालूम नहीं, लेकिन मुझे उसके मुकाबिल दुनिया की कोई लड़की अच्छी नहीं लगती। मारे तैश का उसका बुरा हाल हो गया। तुम्हारा मतलब है मेरी मोहब्बत की तुम्हारे नजदीक कोई हैसियत नहीं है? मैं इसे मोहब्बत नहीं कहता, ये तो बस एक ख्वाहिश थी, अमली इजहार की। मैंने रुखाई से कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। इतनी देर अंदर रहना मारिया के घर वालों को शक में डाल सकता था। वो दौड़ती हुई मेरे पीछे आई। इतने संगदिल ना बनो। संगदिल होता तो तुम्हारी दीवानगी से फायदा ना उठाता। मारिया, तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो। तुम शराब नहीं हो। ख्वाहिशात अक्सर शराबी होती हैं। मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। अभी मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, करियर बनाना है। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है। झूठ, तुम किसी भी तरह 20 साल से कम के नहीं लगते हो। मैं 19 की हूँ। मैं तुमसे 4 साल छोटा हूँ। तुम मेरी तारीख पैदाइश देख सकती हो मेरे तालीमी सर्टिफिकेट्स पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत इन सब बातों को नहीं देखती। तुम इसे मोहब्बत कहती हो?
हाँ, जब मैं चला जाऊं और 1 हफ्ते बाद भी रात को तुम्हें मेरी याद में नींद ना आए तो समझ लेना कि तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है, वरना सिर्फ लगाव है। नीचे सब घर वाले ड्राइंग रूम में जमा थे। हसन ने आकर अफसरदगी से बताया कि डाकुओं ने चौकीदार और कुत्ते को मार दिया था। इसके लिए उन्होंने खामोश हथियार इस्तेमाल किए थे। क्या क्या जैक को मार दिया? बेगम निजामी रोने लगी। मुझे अफसोस हुआ कि गरीब चौकीदार की मौत पर किसी ने एक लफ्ज न कहा। सिर्फ महमूद निजामी किसी कदर अफसरदा नजर आने लगा था। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। जरूरी कार्रवाइयों और बयानात लेने में उन्होंने सुबह कर दी। चारों डाकू जिंदा सलामत थे। जिसके सर पर डंडा लगा था उसकी हालत खराब थी, बाकी सिर्फ बेहोश हुए थे। महमूद निजामी आने वाले डीएसपी को एक तरफ ले जाकर खासी देर राजो न्याज करता रहा। शायद लूट ली जाने वाली रकम के बारे में मजाकरात कर रहा था। ये बात यकीनी थी कि वो उस रकम को डकैती में जाहिर नहीं करता, और अगर पुलिस ये रकम बरामद कर लेती तो वो उनसे मांग भी नहीं सकता था। लिहाजा उसने पहले ही डीएसपी से बात कर ली। जब वो आए तो दोनों ही मुतमईन नजर आ रहे थे। निजामी साहब, यू डोंट वरी, मैं इसके हलक में हाथ डालकर सब कुछ निकलवा लूंगा। इस हरामी की तो मुझे अरसे से तलाश थी। डीएसपी कह रहा था। ये इरशाद जख्मी अरशद बिल्ला के बारे में था। बाद में जो हक़ाइक़ सामने आए उसके मुताबिक अरशद बिल्ला नामी डाकू के उस गिरोह ने खासे कारनामे अंजाम दिए थे और अरसे से इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में वारदातें करते आए थे। उनका तरीक़ाकार बड़ा साइंटिफिक था। वो अंधी वारदात के बजाय पहले से प्लानिंग करके लोगों को लूटा करते थे। उन्होंने मुखबिर रखे हुए थे जो उन्हें टिप दिया करते थे। ये मुखबिर आमतौर से घरेलू और दफ्तरी मुलाजमीन होते थे जो भेदी बनकर लंका ढाते थे। महमूद निजामी के दफ्तर में अकाउंट्स के शोबे में काम करने वाले एक मुखबिर ने अरशद बिल्ला को इत्तला दी थी कि महमूद निजामी के पास एक बड़ी रकम आई है। निजामी ने रकम गिनने के लिए उसे तलब किया था। अरशद बिल्ला ने मुखबिरी पर उसे 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन पकड़े जाने पर जब पुलिस ने उसकी खातिर तवाज़ो की तो उसने सब कुछ उगलने में ज्यादा देर नहीं लगाई। उसमें मुखबिर का नाम भी शामिल था जिसकी पुलिस ने खुसूसी खातिर तवाज़ो की होगी। जिस शख्स का सर मारिया ने बल्ला मारकर तोड़ ही दिया था वो वही खबीस आवाज वाला था जो उसकी बहनों और महापारा के बारे में मकरू अज़ाइम का इजहार करा था। मुझे बेहद खुशी हुई ये सुनकर कि उसे अब अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दिमागी शफाखाने में गुजारना पड़ेगा। बल्ले ने उसके दिमाग को मुतासर किया था। मुझे उम्मीद थी कि पागल खाने में जाकर ही ये कसर भी पूरी हो जाएगी। हम रात भर जागे थे और खासे आसाब शिकन मराहल से गुजरे थे, इसलिए सुबह रवानगी का प्रोग्राम मुलतवी हो गया। नाश्ता करके मैं कमरे में आकर सो गया। जमशेद अली को इस बारे में मुत्तला करने का काम महमूद निजामी ने अपने जिम्मे ले लिया था, जो मेरी तारीफें करते नहीं थक रहे थे और मुझे बोरियत हो रही थी, क्योंकि मारिया न सिर्फ बाप की हाँ में हाँ मिला रही थी बल्कि शरारती नजरों से मुझे देख भी रही थी। शाम तक मैं बेखबर सोता रहा, हत्ता के दरवाजे पर होने वाली मुस्तकिल दस्तक ने मुझे जगा दिया। आ जाओ। दरवाजा खुला और मारिया मुस्कुराती हुई टी ट्रॉली के साथ अंदर आई तो मैं उछल कर बैठ गया। अगर इस वक्त खुदा से कुछ और भी मांगा होता ना तो वो भी मिल जाता। झूठे आदमी, इतनी देर दस्तक के बाद उठे हो, मेरे तो हाथ दर्द करने लगे थे। ट्रॉली में चाय के अलावा खाने पीने का खासा सामान था और उस वक्त मुझे शदीद नौयत की भूख लग रही थी। मैं बिला तकल्लुफ टूट पड़ा। वो मुझे रोकती ही रह गई। अरे मुंह हाथ तो धो लो। हरगिज नहीं, भूख के मारे मैं बाथरूम में फौत हो गया तो? खुदा ना करे। उसने बेसाख्ता कहा तो मैं चौंक गया। मैंने पहली बार उसे बगौर देखा। वो खासे एहतमाम से तैयार होकर आई थी। तंग पजामे पर उसने कमर पर से सिमटा कुर्ता पहन रखा था जिसका गिरेबान बैक वक्त नजरों को शाद काम और मुंतशिर करता था, मजीद की तलब भड़काता था। दुपट्टा पराए नामी था। हल्के गुलाबी रंग का लिबास खुद उसके रंग की गुलाबियत से मेल खा रहा था। बालों की उसने 2 पोनियां बना रखी थी और बिलाशुबा नजर लग जाने की हद तक पुरकशिश लग रही थी। यूं क्या देख रहे हो? उसने नजरें झुकाते हुए कहा। तुम इतनी फ्रेश लग रही हो जैसे सारा दिन सोती रही हो। मैं कहाँ सोई, सुबह यूं ही चली गई। 4 बजे वहां से आई तो नहा धोकर खाना खाया, फिर तुम्हारे लिए चाय ले आई। इतनी थकन के बाद बनने संवरने की ताकत सिर्फ लड़कियों में ही होती है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि फिर सो जाऊं। कोई जरूरत नहीं है। उसने खिड़कियों के पर्दे हटा दिए। उसने रोशनियां जलाते हुए खिड़कियों के पर्दे समेट दिए। शाम हो चुकी थी। दूर मगरबी पहाड़ियों के अकब में सूरज गुरूब होने की तैयारी कर रहा था। कल सुबह तुम चले जाओगे, तब तक का वक्त मेरे नाम कर दो। उसका लहजा इल्तिजाइया था। तुम्हारे घर ठहरा हूं, तुम्हारे कब्जे में हूं, जो जी चाहे करो। वो खिल उठी। बस तो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम डिनर बाहर ही करेंगे। तुम्हारी बहन की हालत कैसी है? शी इज ऑल राइट। कुछ सदमे का असर है, चंद दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। उसकी छोटी सी कार शोक सुर्ख रंग की थी। वो बेहद तेज रफ्तारी से ड्राइव करती थी। खुशकिस्मती से इस्लामाबाद की सड़कें उसका साथ दे रही थी। वो लापरवाही से रफ्तार कम किए बगैर मोड़ काट रही थी। 10 मिनट बाद कार एक सरसब्ज दरख्तों और लॉन से घिरी इमारत के सामने रुकी जिसकी पेशानी पर यूथ क्लब लिखा था। इमारत जदीद अंदाज की थी।
मैं इस क्लब की मेंबर हूँ, आओ अंदर चलें। उसने कार से उतरते हुए कहा। लाउंज में ही बेशुमार लड़के लड़कियां बैठे थे। उनमें से अक्सर ने मारिया से हेलो हाय की, यानी वो यहाँ बेहद मकबूल थी। वो मुझे लिए एक अलग कमरे में आई। कमरे में कॉर्नर्स पर सोफे नुमा कुर्सियां थीं, जिनके आगे बेड से बनी मेजें थीं। उनके टॉप शीशे के थे। एक कॉर्नर में एक नौजवान जोड़ा सर जोड़े सरगोशी में मसरूफ था। उन्होंने हमारी आमद का कोई नोटिस ना लिया। क्या पियोगे? जो तुम चाहो। बाय द वे, ये किस टाइप का क्लब है? ये क्लब सिर्फ नौजवानों के लिए। 30 साल से ज्यादा उम्र के लोग इसके मेंबर नहीं बन सकते, और जैसे कोई मेंबर 30 का होता है उसे क्लब से निकाल दिया जाता है। तुम यहाँ बाकायदगी से आती हो? हफ्ते में 2-3 बार। दरअसल यूनी में आने के बाद मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिलता। मारिया ने लाइम जूस मंगवाया। ना जाने क्यों ये जगह मुझे अपनी तमाम तर खूबसूरती के बावजूद नहीं भाई थी। जूस पीकर उसने मुझे बाहर चलने को कहा। स्विमिंग करोगे? सॉरी, मैंने आज तक किसी पब्लिक पूल में स्विमिंग नहीं की। मजा आएगा, करके तो देखो। मेरे पास तैराकी का लिबास भी नहीं है। वो भी मिल जाएगा। चलो आओ, पहले पूल देख लो। बिलीव मी, पूरे पाकिस्तान में इससे ज्यादा खूबसूरत स्विमिंग पूल नहीं होगा। वो उठ गई। पूल क्लब के पिछले हिस्से में था और तारीकी छा जाने के बावजूद आबाद। हल्के नीले रंग की टायरों से बना यह स्विमिंग पूल रोशनियों और रोशन जिस्मों से जगमगा रहा था। पूल में अक्सरियत लड़कियों की थी, जो मुख्तसर तरीन लिबास में तैराकी से लुत्फानंदोज हो रही थी। उनके बेबाकाना कहकहे माहौल को खनका रहे थे। तुम भी यहाँ स्विमिंग करती हो? ऑफ कोर्स, आई एंजॉय इट। मोहम्मद मेरी नजर पूल की दूसरी तरफ कुर्सी पर साथ साथ बैठे एक जोड़े पर पड़ी। अचानक लड़का अपना रुख बदलते हुए अपनी साथी लड़की के चेहरे पर झुक गया था। मैं दम बखुद रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे माशरे में सरेआम बेबाकी का इतना खुला मुजाहरा भी मुमकिन है। यकलख्त मुझे अपनी बेजारी की वजह समझ में आ गई। चलो यहाँ से, मैंने मारिया से कहा और उसका इंतजार किए बगैर बाहर निकल आया। वो दौड़ती हुई मेरे पीछे आई। यूसुफ, क्या हो गया तुम्हें? उसने हाँफते हुए कहा। आई एम सॉरी, मुझे इस किस्म का माहौल अच्छा नहीं लगता। बट यूसुफ, यू आर यंग। हाँ, मैं नौजवान हूँ, लेकिन हमारी माशरती इक़दार है। तमाम तर आज़ाद ख्याली के बावजूद हम उन्हें नहीं छू सकते। इस किस्म की हरकतें करने वाले लोग मेरे नज़दीक ज़हनी तौर पर दिवालिया होते हैं। लेकिन यह हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। हाँ, लेकिन जिस सोसाइटी की तुम बात करी हो वो इस मुल्क का कितने फीसद है? शायद 1% भी नहीं। तो मिस मारिया, मैं 99% के रास्ते पर क्यों ना चलूं? इट इज़ द मोस्ट पार्ट ऑफ सोसाइटी। मैं उन 1% लोगों का साथ क्यों दूं जो गैरों से मुस्तार ली हुई जिंदगी जी रहे हैं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर कदामत पसंद ज़हनियत रखते होगे। प्रोपेगेंडे पर मत जाओ। आजकल उसूल, इखलाक और इक़दार कदामत परस्ती की अलामत बना दिए गए हैं। दुनिया को उनसे जान छुड़ाने का मशवरा दिया जा रहा है। ये सब तंग नजरी की बात है। एक बात बताओ, तुम इतने अरसे से इन लोगों के दरमियान हो, इनमें से कोई एक भी शख्स तुम्हें पसंद नहीं आया? क्यों? उसने नजरें चुरा ली। ये तो दिल की बात है। तो मिस मारिया, दिल भी कुछ देख कर ही आता है ना। बकौल तुम्हारे, मैं कदामत परस्त शख्स हूँ। तो आखिर तुमने इतने सारे आज़ाद ख्याल नौजवानों को छोड़कर मुझे ही क्यों मुंतखब किया अपनी मोहब्बत से नवाजने के लिए? मैं नहीं जानती। तुम एक अच्छी लड़की हो बाय नेचर। इन चक्करों से निकल जाओ। ये सब हमारे लिए नहीं है। बाहर से आया कोई पौधा इस सरजमीन पर जड़ नहीं पकड़ सकता, चाहे उसे लगाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना की जाए। वो कार में जा बैठी। जैसे ही मैं उसके बराबर में बैठा, उसने इतनी तेजी से कार रिवर्स की कि उसके पहिए चीख उठे। 10-15 मिनट उसने इतनी रफ ड्राइविंग की कि मेरा दिल हलक में अटका रहा। स्पीड 90 और 100 के दरमियान थी। रफ्ता रफ्ता उसके उबाल में कमी आने लगी तो रफ्तार भी कम होने लगी। मिलाकर उसने कार एक सड़क के किनारे दरख्तों तले रोक ली। यहाँ नीम तारीखी थी। आई एम सॉरी यूसुफ। नो प्रॉब्लम। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं नहीं, माजरत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम पहले शख्स हो जिसने मुझे टोका है। मुझे अच्छा लगा, वरना मम्मी डैडी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि हमारी मसरूफियात के बारे में जान सकें और हमें सही गलत के बारे में बताएं। सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ही नहीं, बल्कि इस तबके के अक्सर घरानों का यही अलमिया है। यूसुफ, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना? वो अचानक रो दी। नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे थोड़ी सी मोहब्बत भी नहीं दे सकते? मुझसे वो चीज़ मत मांगो जो मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं काजल का हक नहीं मांगती। मैं तुम्हें दे भी नहीं सकता। कम ऑन, लेट्स गो। देर हो रही, अभी डिनर भी करना है। एक होटल में डिनर करके हमने लाल हजार की आइसक्रीम खाई और घर वापस आ गए। रात के 12 बज रहे थे। वो मेरे साथ थी और जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो फोन की घंटी बज रही थी। मारिया ने रिसीवर उठाया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। काजल है। मारे गए, मैंने दिल में कहा और फिर बोला, हेलो काजल। इसे तो मेरा नाम भी मालूम हो गया। अब जरा इसका तारुफ भी करा दो। ये मारिया है। और ये तुम्हारे रूम में क्या करी है?
وہ بھی رات کے 12 بجے؟ ہم ہم باتیں کر رہے تھے۔ مجھے اکلاتے دیکھ کر ماریا ہنس دی اور بدقسمتی سے وہ میرے بے حد نزدیک تھی۔ اس کی تھوڑی میرے شانے پر لگی اور میں اپنی پشت پر اس کا گوداس محسوس کر رہا تھا۔ اس چیز نے مجھے اور بھی بوکھلا دیا۔ یہ ہنس رہی ہے، اس سے کہو فوراً تمہارے کمرے سے چلی جائے۔ کاجل بیہیو پلیز، تم بھول رہی ہو میں اس کے گھر میں ہوں، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر تم نے نہیں کہا تو میں خود کو شوٹ کر لوں گی۔ مائی گاڈ، تمہارے پاس پستول کہاں سے آیا؟ میں نے پاپا کا چرایا ہے، تم اسے نکال رہے ہو یا نہیں؟ میرے خدا، ماریا تم پلیز جاؤ یہاں سے۔ کیا تم اس کے کہنے پر مجھے بھگا رہے ہو؟ تم نہیں جانتی کاجل کتنی ضدی ہے، وہ جو کہتی ہے اسے کر کے دکھاتی ہے۔ پلیز یو کین گو نا۔ تو اسے کرنے دو نا، اچھا تمہاری جان۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میرا ہاتھ اس کے منہ پر لگا اور وہ اچھل کر پیچھے جا گری۔ آئندہ کاجل کے بارے میں ایک لفظ برا مت کہنا، اب تم جاتی ہو یا میں اس گھر سے چلا جاؤں؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری طرف دیکھا، پھر یکدم ہنس دی، تیز اور ہزیانی ہنسی۔ وہ اٹھی اور اچانک جھپٹا مار کر مجھ سے فون چھینا۔ میں اسے روک نہ سکا۔ وہ زہریلے لہجے میں کاجل سے بولی، سنو بیبی، میں یوسف سے محبت کرتی ہوں اور یہ تم سے پیار کرتا ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یوسف نے تمہارے لیے مجھے تھپڑ مارا، مجھے برا نہیں لگا۔ اپنے محبوب کا دیا ہر ستم مجھے قبول ہے۔ یہ مجھے یہاں سے جانے کو کہہ رہا ہے، میں اس لیے جا رہی ہوں، ورنہ خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے دور نہیں کر سکتی۔ اس نے ریسیور بیڈ پر پھینکا اور تیز تیز قدموں سے کمرے سے چلی گئی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ وہ رافع چلی گئی؟ یوسف، آئی ول کل یو۔ کاجل کی جلی کٹی آواز آئی۔ خدا کے لیے کاجل، میں اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور تم نے جلتی پر تیل چھڑک دیا۔ ایک دن کی تو بات تھی، کل میں چلا جاتا یہاں سے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی لڑکی کو تمہارے پاس برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ جا چکی ہے نا، کھاؤ میری قسم۔ کاجل، مجھ پر اتنا دباؤ تو مت ڈالو۔ میں جانتی ہوں تم میری جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، کھاؤ قسم۔ اچھا بابا، تمہاری قسم، جا چکی ہے وہ، حالانکہ وہ میرے پاس بیٹھی ہے۔ اب تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بائی دی وے، شام سے تم کہاں تھے؟ میں نے کوئی درجن بھر کالز کی۔ کل رات کیا ہوا تھا؟ میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ کل رات کیا واقعات پیش آئے تھے جن کی وجہ سے ہماری روانگی ایک دن کے لیے ملتوی ہو گئی تھی۔ اب تم اسے اپنے کمرے میں نہیں بلاؤ گے؟ کیا تم نے مجھے کمزور سمجھ رکھا ہے؟ نہیں، میں خود کمزور ہوں، کسی اور لڑکی کو تمہارے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ماریا اچھی لڑکی ہے، ذرا راہ سے بھٹکی ہوئی ہے۔ میری کوشش ہے کہ یہ غلط راہوں پر اور آگے نہ بڑھے۔ دیکھ لو کہیں اسے راہ پہ لاتے لاتے خود نہ بھٹک جانا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں کسی قدر جھنجھلاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ان دونوں لڑکیوں نے مجھے سینڈوچ بنا دیا تھا۔ جب خاصی دیر تک مجھے نیند نہیں آئی تو میں نے اٹھ کر نیم گرم پانی سے غسل کیا۔ اس سے مجھے خاصا سکون ملا اور بالآخر میں سو گیا۔ اگلی صبح دو ملائم ہاتھوں نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں آنکھیں کھولے بغیر بھی جان گیا کہ یہ مہاپارا تھی۔ سونے دے ماں۔ بیٹا، جانے کا وقت ہو گیا، تیار ہو جاؤ، کل سے خوب گھوم رہے ہو، کاجل پوچھے گی۔ کاجل پوچھ چکی ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا اور اٹھ بیٹھا۔ ہاں، کل بار بار اس کا فون آ رہا تھا۔ آپ اسے مارے گولی، بس مجھے ایک کپ چائے کا دے دیں ورنہ میری آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ چائے تو آلریڈی موجود ہے، لیکن پہلے منہ ہاتھ دھو کر آؤ۔ اب میں بچہ نہیں ہوں۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، کل سے دو لڑکیاں پیچھے پڑی ہیں اور تیسری آپ آ گئی صبح صبح۔ بدتمیز کہیں کے، صبح صبح مار کھاؤ بڑے شوق سے۔ کیا نرم و ملائم ہاتھ ہے، استاد محترم کے پتھر نما ہاتھوں سے بہت بہتر ہے۔ وہ بھی آ جائیں گے اگر تم 10 منٹ کے اندر اندر تیار ہو کر ناشتے کی میز پر نہ پہنچے تو۔ ناشتے پر سبھی موجود تھے۔ شامی بدستور چہک رہا تھا، باقی سب بھی ہنس مسکرا رہے تھے، حتیٰ کہ ماریا کی بڑی بہن بھی بہتر نظر آ رہی تھی۔ ماریا البتہ کبھی کبھی غمگین نظر آنے لگتی، لیکن اس لمحاتی دکھ کو بڑی خوبی سے چھپا لیا کرتی تھی۔ ناشتے کے بعد ملازمین نے ایک چھوٹی سی جیپ میں ہمارا سامان لادا۔ اس میں آگے پیچھے 4 سیٹیں تھیں اور عقبی حصے میں سامان رکھنے کے لیے ایک چھوٹا خانہ تھا جو اس وقت سامان سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ چھت پر بھی سامان رکھا جا رہا تھا۔ محمود نظامی نے حسن علی سے ہاتھ ملایا، پھر مجھے گلے لگا لیا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، رقم گئی کوئی بات نہیں، لیکن عزت بچ گئی، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ مجھے شرمندہ مت کریں، آپ پاپا کے دوست ہیں، اس ناطے میں آپ کو بھی اپنا بزرگ سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا اور سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ ان کی عزت دشمن سے تو بچ گئی، لیکن ان کی اولاد جس راستے پر چل رہی تھی کیا وہ اپنی عزت محفوظ رکھ پائیں گے؟ ماریا اور اس کی بہنوں نے بے تکلفی سے مجھ سے ہاتھ ملایا، بلکہ ماریا کے انداز میں غیر معمولی گرم جوشی تھی۔ حسن علی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اس کے برابر میں مہاپارا بیٹھی تھی۔ جب میں پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگا تو ماریا نے مجھے ایک پیک شدہ چوکور ڈبہ دیا۔ یہ تمہارے لیے گفٹ ہے میری طرف سے،
शुक्रिया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। हसन अली ने जीप चला दी। इस्लामाबाद के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए मेरा जहन गुज़िश्ता 2 दिन के वाक़यात में उलझने लगा। मैंने बेख्याली में मारिया का दिया हुआ तोहफा खोला। अंदर से रिवायती तोहफा निकला जो अक्सर लड़कियां अपने महबूब को तोहफे में देती हैं, यानी परफ्यूम। एक लट्टू नुमा शीशी थी जिसमें जर्दी माइल नीला स्याल हलकोरे ले रहा था। मैंने बेख्याली में उसका बटन दबा दिया। एस्प्रे की ख्वार फिजा में गई और फिजा आहिस्ता आहिस्ता महकने लगी। खुशबू फैली तो महापारा ने चौंक कर पीछे देखा। बड़ी प्यारी खुशबू दी है मारिया ने, वो बड़ी प्यारी लड़की है। दुनिया में सारी लड़कियां प्यारी होती हैं। मैंने शीशी को वापस डब्बे में रख दिया। लगता है काजल ने होश ठिकाने लगा दिए तुम्हारे, कल से उड़े उड़े फिर रहे थे। हसन अली हंस पड़ा। लड़कियां इसी तरह होश उड़ाती और ठिकाने लगाती रहती हैं। हसन अली खिसिया गया। महापारा ने अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाने के लिए मुंह दूसरी तरफ फेर ली। मैं थकावट से महसूस कर रहा था, इसलिए पिछली सीट पर नींद दराज हो गया। जब हल्के से झटके से मेरी आंख खुली तो दोपहर के 2 बज गए थे। बाहर तेज धूप थी, लेकिन हवा की खुनकी बता रही थी कि हम सतह समंदर से खासी बुलंदी पर आ गए थे। जीप सड़क से जरा हटकर नशेब में दरख्तों के एक घने झुंड में खड़ी थी। हसन अली और महापारा बाहर थे। मैं भी उतर आया। मुसलसल एक ही अंदाज में बैठे रहने से जिस्म सुनसा हो गया था। मैंने जरा हाथ पैर चला। कुछ ही दूर महापारा एक छोटी सी नदी के बहते पानी में पैर डाले बैठी थी। हसन अली उनसे कुछ फासले पर था। मैंने मुनासिब समझा कि दूसरी तरफ निकल जाऊं। सड़क दूसरी तरफ जरा बुलंदी पर थी। मैं करीब आया। उसी लम्हे एक सफेद डाटसन पिकअप तेजी से गुजरी। उसकी ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स ने मुझे चौंका दिया। उसके नक्कुश अरशद बिल्ला से मिलते थे, लेकिन वो अरशद बिल्ला कैसे हो सकता था? वो डकैती और कत्ल के इल्जाम में पुलिस की तहवील में था और जख्मी भी था। मैं वापस आया तो महापारा जीप से सामान निकालकर सामने हरी भरी घास पर बिछे दस्तरखान पर सजा रही थी। मैंने सरसरी अंदाज में हसन अली से पूछा, आपने रास्ते में कोई सफेद डाटसन पिकअप देखी थी? बेशुमार सड़कों पर नजर आने वाली हर तीसरी गाड़ी डाटसन पिकअप ही होती है। मैंने उसे अपने मुशाहिदे से आगाह किया तो वो सोच में पड़ गया। तुम्हें धोखा हुआ होगा। मुमकिन है, लेकिन बेहतर होगा कि रास्ते में जरा मोहतात रहे। हमने उन डाकुओं से पंगा लिया है जो इस्लामाबाद जैसी जगह पर दीदा दिलेरी से वारदातें करते फिर रहे थे। जब कोई सूरत हाल सामने आएगी तो देख लेंगे। फिलहाल तो खाने से 2-2 हाथ हो जाए, बड़ी भूख लग रही है। वो दस्तरखान पर बैठते हुए बोला, जिस पर गर्मा गर्म हॉट पॉट से निकाले आलू भरे पराठे, कीमे, अंडे का सालन और चटनी अचार के साथ फिरनी भी थी। सफर के दौरान मुसलसल धचकों ने भूख चमका दी थी। मैं हाथ धोकर आया और आते हसन अली के साथ खाने पर टूट पड़ा। महापारा हमें तमीज से खाने की तलकीन करती रह गई और हमने सचमुच दस्तरखान साफ कर दिया। हालांकि निजामी के बावर्ची ने हर शय खासी मिकदार में रखी थी। खाने के बाद सुस्ती तारी होने लगी, लिहाजा फैसला हुआ कि 2 घंटे आराम के बाद शाम 4:30 बजे रवाना होंगे। अब सफर ज्यादा नहीं रह गया था। अगरचे हम पहली बार इस इलाके में आए थे, लेकिन हमें यहाँ की वजाहत इतनी अच्छी तरह कर दी गई थी कि अब रास्ता बिल्कुल आसान लग रहा था। पेट भर नींद ने असर दिखाया। मैं और हसन अली तो घोड़े बेच कर सोए। खुद महापारा भी ना चाहते हुए गाफिल हो गई। हम वहीं हरी भरी घास पर दराज थे। जब आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। जीप सड़क पर आते हसन अली ने इतनी तेजी से ड्राइविंग की कि महापारा को उसे टोकना पड़ा। इतनी जल्दी भी क्या है? अगर हम जरा देर से पहुंचे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। मुमकिन आ ही जाए। इस इलाके में मौसम का कोई एतबार नहीं। अव्वल तो तारीकी में रास्ता तलाश करना नामुमकिन हो जाता है, और अगर बारिश वगैरह हो गई तो रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। सारी रात जीप में ठिठुरते गुजर जाएगी। बाज़ औकात कबूलियत की घड़ी होती है। मैंने देखा कि दूर जनूब मशरक से सियाह घटाएं उमड़ी चली आ रही थी। हसन अली ने भी देख लिया और रफ्तार बढ़ा दी। अब हम एबटाबाद शहर से 40 मील के फासले पर थे और उससे 2-3 मील पहले एक ज़ेली सड़क मगरिब की तरफ घूम जाती थी जो आगे जाकर एक वादी में खत्म होती थी। उस वादी में साहिब सरवत लोगों ने बंगले और कॉटेजेस बना रखे थे, जिसमें वो गर्मियों में अपने अहले खाना के साथ आकर ठहरा करते थे। अभी सूरज डूबने में कुछ देर बाकी थी कि बादलों ने आसमान पर कब्जा करके माहौल को तारीक कर दिया। मजबूरन हसन अली को रफ्तार कम करना पड़ी। उसने पुरतशवीश लहजे में कहा, अगर बारिश हो गई ना तो जीप चलाना मुश्किल हो जाएगा। खुदा ना करे। उस्ताद मोहतरम, जरा अच्छी बात मुंह से निकालें। अभी कुछ देर पहले आपने मौसम का जिक्र किया था और बादल धमके थे, और अब मेरी बात अधूरी रह गई। बिजली ऐसी तड़प कर चमकी कि महापारा के मुंह से चीख निकल गई। आसमान यूं रोशन हो गया जैसे फ्लैश चमकी हो। 1 मिनट बाद ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसका सिलसिला इतना तेज हुआ कि कुछ ही देर में सारा माहौल जल थल हो गया। पानी की बरसती चादर की वजह से 10 गज के फासले पर मौजूद चीज नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में ड्राइविंग करना बिला वजह हादसे को दावत देने वाली बात थी। लिहाजा हसन अली ने सड़क से जरा दूर हटकर एक चट्टान तले जीप रोक ली। यहाँ पानी की बौछार कम थी, लेकिन जीप में हम वैसे ही महफूज थे। इंजन बंद करने के बजाय उसे चलता रहने दिया
تاکہ بعد میں اسے سٹارٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ پہاڑی علاقوں میں بارش جتنی تیزی سے شروع ہوتی ہے اتنی تیزی سے بند بھی ہو جاتی ہے۔